Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Probability Distribution. Now, we'll be seeing exercise 8.1 का question number 16. 70% of the members favor and 30% oppose a proposal in a meeting. The random variable x takes the value 0 if the member opposes the proposal and the value 1 if the member is in favor. Find E of x and variance of x. Now, question में दिया है the random variable x takes what? The value 0 and 1. So 0 and 1 are my random variables के values. That is x का value 0 है and x का value 1 है. अच्छा 0 कब होगा? जब किसी ने वो proposal जो है वो oppose किया. अच्छा तो ऐसे कितने लोग हैं? There are 30% in that condition. So यहाँ पे random variable x takes the value 0 and 1. Probability of x equal to 0 जो है that is 30% बोला है. So this becomes 30 by 100 and this is equal to 3 by 10 आ जाएगा. फिर आएगा यहाँ पे if the person is there in favor of this, so there are 70%. 70% मतलब ये हो जाएगा 70 by 100 and ये हो जाएगा 7 by 10. Now यहाँ पे we need to find the value of what? E of x and variance of x. So यहाँ पे जो random variable की values है that is xi, that is 0 है and 1 है. उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो है pi ये 3 by 10 है और ये 7 by 10 है. यहां पे आ जाएगा xi into pi for e of x and for variance of x हमें xi square pi भी ढूंढना होगा. So ये हो जाएगा this into this, तो 0 into 3 by 10 ये हो जाएगा 0, 1 into 7 by 10 ये हो जाएगा 7 by 10. अभी xi into pi का जो आंसर है we multiply that by what? xi. तो मुझे मिलेगा xi into xi, तो xi square pi क्योंकि इसके साथ pi है. 0 into 0 तो ये 0 हो जाएगा. 1 into 7 by 10 तो ये 7 upon 10 हो जाएगा. Now we write over here E of x. This is equal to summation xi into pi हो जाएगा. So यहाँ पे we write it as total. So इसका total किया तो 0 plus 7 by 10 तो आंसर है 7 upon 10. इसका total किया तो इसका भी आंसर है 7 by 10. So यहाँ पे summation xi pi जो है that is 7 upon 10 जिसको हम लिख सकते हैं 0.7. अब यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x पूछा है. दिस इज e of x स्क्वायर माइनस e of x द होल स्क्वायर एंड ये हो जाएगा समेशन ऑफ xi स्क्वायर pi माइनस समेशन xi pi द होल स्क्वायर एंड द वैल्यू फॉर दिस इज इसका टोटल आ गया 7 by 10 माइनस ये हो जाएगा 7 upon 10 the whole square. See यहाँ पे एक्चुअल में हमने 0.7 लिख दिया है. 7 upon 10 का भी वही मीनिंग होता है बट पॉइंट वाले नंबर हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने उसको फ्रैक्शन के टर्म्स में ही लिखा है कि 7 by 10. See 0.7 is same as 7 by 10 होता है एंड उसका स्क्वायर. तो यहाँ पे ये 10 के टर्म्स में रहेगा तो ये हो जाएगा 7 by 10 minus this gives me 49 by 100 as the value. क्योंकि ये स्क्वायर हुआ तो 100 हुआ. अभी 10 and 100 तो LCM of this is 100. इसको 100 बनाने के लिए ये 10 से मल्टीप्लाई होगा. So this becomes 70 minus 49.
एंड 70 माइनस 49 किया तो ये हो जाएगा 21/100 एंड लास्ट में वी कैन राइट इट एज 0.21. ये हो गया मेरा वेरिएंस ऑफ x. लास्ट में फाइनल आंसर के वक्त वी कैन राइट e ऑफ x का वैल्यू विच इज 0.7 and v of x का value which is 0.21. So with this question is done. We make a note of this. We'll start with few of the questions from the miscellaneous part. Miscellaneous. यहाँ पे part 1 Roman number 4 उसका 12th question. Let the PMF of a R dot V x be P of x is equal to 3 minus x upon 10 for x equal to minus 1, 0, 1, 2 equal to 0 otherwise. Calculate E of x and variance of x. Now यहाँ पे condition दिया है P of x जो है that is equal to 3 minus x upon 10 for x equal to minus 1, 0, 1 and 2 and इसका वैल्यू इक्वल टू 0 है अदरवाइज. मतलब अगर x के वैल्यूज -1, 0, 1, 2 इसको छोड़ के कोई भी वैल्यू ऑफ x आया द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट विल बी 0. ये अदरवाइज इट इज 0 का मीनिंग ये होता है कि x का वैल्यू -1, 0, 1, 2 के अलावा कोई भी वैल्यू ऑफ x आ योर प्रोबेबिलिटी फॉर दैट इज ऑलवेज 0. सो ये मीनिंग हो गया. सो नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड e ऑफ x मेरे पास xi के वैल्यूज है दैट इज -1, 0, 1, 2 बट आई वांट द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के वैल्यू. सो फॉर दैट यहां पे लिखना होगा फॉर x इक्वल टू -1 p of x इक्वल टू -1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ -1 अपॉन 10 that gives me the value as 3 plus 1 upon 10 that is 4/10. फिर आ जाएगा यहां पे for x is equal to 0 p of x equal to 0 is equal to 3 minus 0 upon 10 which is 3/10. For x equal to 1 p of x equal to 1 ये हो जाएगा 3 minus 1/10 which is 2/10 and यहाँ पे आएगा for x equal to 2 p of x equal to 2 is 3 minus 2 upon 10 that is equal to 1/10 and यहाँ पे -1, 0, 1, 2 इसके सारे probabilities आ चुके हैं. So now we can prepare a table where we have the value as xi that is -1, 0, 1 and 2. We have the respective probabilities of that as 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 and we have the value over here as xi into pi. क्योंकि हमें e of x ढूंढना है that is expected value and उसका वैल्यू होता है summation xi into pi and for getting the value of summation xi into pi हमें क्या चाहिए पहले xi into pi चाहिए. So ये हो जाएगा -4/10
ये हो जाएगा 0/10, ये हो जाएगा 2/10 एंड ये भी हो जाएगा 2/10 एंड यहां पे हम उसका टोटल करेंगे तो वी गेट -4/10 प्लस 0/10 प्लस 2/10 प्लस 2/10, ओवरऑल आंसर आ गया 0, क्योंकि -4 प्लस 2 -2 हो गया प्लस 2 तो 0 हो गया, सो 0/10 इज सेम एज व्हाट 0 एंड यहां पे आ जाएगा xi स्क्वायर pi, सो xi स्क्वायर pi का मीनिंग होता है xi इंटू xi pi, सो दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा 4/10, ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2/10, ये हो जाएगा 4/10, सो ओवरऑल इसका टोटल हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 4 मतलब 8 प्लस 2 10 हो गया 10/10 और इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट द वैल्यू एज व्हाट 1, सो यहां पे हम लिखेंगे e ऑफ x जो है दैट इज समेशन ऑफ xi इनटू pi एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज 0 एंड यहां पे v ऑफ x जो है उसका वैल्यू होता है e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर, सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा समेशन xi स्क्वायर pi माइनस समेशन xi pi द होल स्क्वायर, सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर which is same as 1 minus 0 and this is equal to ये हो जाएगा मेरा वैल्यू as what 1, सो मेरा वेरिएंस का वैल्यू 1 आ चुका है एंड मेरा e of x का वैल्यू 0 है फॉर दिस, सो यहाँ पे हम लिखेंगे e of x is equal to 0 and variance of x को var of x is equal to 1, so with this question is done, we make a note of this. We'll start with the next question, that is miscellaneous से part 1 से Roman number 4 से 11th sum. A player tosses 2 coins. He wins ₹10 if 2 heads appear, ₹5 if 1 head appears, and ₹2 if no head appears. Find the expected value and variance of winning amount. Now यहाँ पे we'll write let x denote winning amount. Now यहाँ पे the possible values are दिया है 2, 5 and 10, 2 है 5 है and 10. Now यहाँ पे when a coin is tossed हमारे पास head आ सकता है या फिर tail आ सकता है. Now यहाँ पे can I say ₹10 if 2 heads appear, ₹5 if 1 head appear and ₹2 if no head appears. मतलब मेरा जो condition है is of getting a head. So I'll say let P और ब्रैकेट में लिखूंगा गेटिंग अ हेड,
सो दिस इज इक्वल टू p और ये हो जाएगा 1 बाई वॉट 2। क्यों 1 बाई 2? क्योंकि हेड आने का चांस जितना है उतना ही टेल आने का चांस होता है, और हेड आने का चांस एक ही होता है, कितने में से? हेड या टेल, दो पॉसिबिलिटीज में से, इसलिए यहाँ पे इट इज 1 बाई 2। एंड अगर P का वैल्यू 1 बाई 2 है तो Q का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस P विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं था इसलिए 1 लिखा, तो एलसीएम लिया तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 माइनस 1। सो आंसर फॉर दिस वैल्यू ऑफ Q इज ऑल्सो 1 बाई 2। सो यहाँ पे P का वैल्यू भी आ गया, Q का वैल्यू भी आ चुका है। सो यहाँ पे आएगा P ऑफ x इक्वल टू 2, मतलब एक्चुअल में है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, मतलब अगर कोई भी हेड नहीं है, अच्छा हाँ, तभी जाके उसका पॉसिबल वैल्यू जो था वो 2 था, इसलिए यहाँ पे लिखा P ऑफ x इक्वल टू 2। बट यहाँ पे जब लिखा तो ये 2 किसके लिए था? नो हेड वाले कंडीशन के लिए था। एंड व्हेन इट इज नो हेड, इसका मतलब वो टेल होना चाहिए, इसका मतलब ये Q एंड Q आ जाएगा। सो दिस गिव्स मी द वैल्यू एज 1 by 2 into 1 by 2 and this will give me the value as 1 by 4। फिर आएगा यहाँ पे P of x equal to 5। हाँ, बट ये x 5 कब है? तब है जब P of x equal to 1 हेड है। अच्छा, तो एक हेड कब पॉसिबल है? पहला हेड है, दूसरा टेल रहेगा, या फिर पहला टेल और दूसरा हेड। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ PQ, P प्लस Q प्लस Q प्लस P, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ PQ लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2। यस, इसको सिंप्लीफाई किया, सी मुझे पता है ये 2 और 2 कैंसिल होता है, हम नहीं करेंगे। वी राइट 2 इंटू 1 एज 2 and 2 2s as 4। See, we can still write this 2 by 4 as 1 by 2 लिख सकते हैं, बट हम प्रेफर नहीं करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, इसको भी डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? 4। एंड अब यहाँ पे आएगा P of x equal to 10। बट ये 10 कब होता है? When it is x is equal to 2 heads। जब 2 heads आते हैं तब उसका वैल्यू 10 है, मतलब यहाँ पे P आ जाएगा, दैट इज P इंटू P, मतलब ये हो गया हाफ इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा 1 बाई 4। सो P ऑफ x इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पे नाउ वी गॉट द रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज एंड वी गॉट द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज। अभी उन लोगों ने क्वेश्चन में पूछा क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा xi, यहाँ पे आ जाएगा मेरा pi। सो नेक्स्ट थिंग मुझे टेबल में चाहिए, दैट इज xi इंटू pi, एंड उसके बाद मुझे जो वैल्यू चाहिए वो है xi स्क्वायर pi। सो यहाँ पे द वैल्यूज आर 2, 5 एंड 10। द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज आर 1 by 4, 2 by 4 एंड 1 by 4। सो उस हिसाब से ये हो जाएगा 2 by 4, 10 by 4, 10 by 4। यहां पे टोटल एज 22 by 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 10 प्लस 10, सो ये हो गया 22 अपॉन 4। एंड अब xi pi को मल्टीप्लाई करेंगे विद xi, तब जाके ये मुझे मिलेगा xi स्क्वायर pi। 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 बाई 4, ये हो जाएगा 50 बाई 4 एंड ये हो जाएगा 100 बाई 4 एंड टोटल आ जाएगा ऑफ दिस एज 154 बाई 4। सो आफ्टर दिस वी राइट ओवर हियर एज e ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू समेशन xi इंटू pi। दिस इज 22 बाई 4, इसको सिंप्लीफाई किया, ये हो जाएगा 5.5 e ऑफ x का वैल्यू। v ऑफ x जो है दैट बिकम्स e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर।
सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा समेशन xi स्क्वायर pi माइनस समेशन xi pi दी होल स्क्वायर. सो व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू, ये हो जाएगा 154 by 4 माइनस 22 by 4 दी होल स्क्वायर. सो अकॉर्डिंग टू दिस जनरली हम क्या करते हैं, इसको डेसिमल में नहीं लिखते हैं. सो ये 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होने वाला है, तो 22 का स्क्वायर इज 484. सो इसको भी 16 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो ऊपर वाला नंबर भी मल्टीप्लाई बाय 4. यस, ये 16 हो गया, इसको 4 से 4 4 जा 16, इसलिए ये भी 154 into 4, ये हो जाएगा 616. सो वी गेट 616 minus 484 divided by 16. So this is equal to 132 upon 16 and this is equal to, ये हो जाएगा 16 8 जा 128, तो 4 बचेगा, 4 0 तो 16 2 जा 32, तो 8 बचा, 8 0 तो 16 5 जा. सो ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट, v of x 8.25. सो ये v of x आ गया, ये e of x आ गया. So this is nothing but what the expected value and variance of the winning amount is rupees आ जाएगा 5.5 and rupees 8.25 respectively. So with this question is done. We'll make a note of this. Now we'll start with the next question, that is again from the miscellaneous part of 1 Roman number 4 question number 10. Find the expected value and variance of the following RV X if the probability distribution is as follows. First sub question in that is x के values है 1 2 3, probability of x equal to x, उसका value है 1/5 2/5 2/5. Second sub question is x के values है -1 0 1, p of x equal to x के values है 1/5 2/5 2/5. Third sub question, x के values है 1 2 3 dot 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 n, p of x equal to x का value है 1/n 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 dot 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 1/n. Fourth sub question है x के वैल्यू 0 1 2 3 4 5, p of x equal to x का वैल्यू है 1/32 5/32 10/32 10/32 5/32 1/32. नाउ ये 4 सब क्वेश्चन में से 10th का फर्स्ट सब क्वेश्चन, सेकेंड सब क्वेश्चन एंड फोर्थ सब क्वेश्चन यू नीड टू डू इट एज होमवर्क, एंड 10th का जो थर्ड सब क्वेश्चन है यस उसका सोल्यूशन हम यहां पे देखेंगे. सो हियर द वैल्यूज ऑफ x जो है आई विल डायरेक्टली कंसीडर दैट एज माय xi के वैल्यूज. इट इज 1 है 2 है 3 है डॉट 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 n है. यहां पे मेरा प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज है यस p of x equal to x जो दिया था. नाउ आई विल कंसीडर इन दिस टेबल एज pi एंड उसके वैल्यूज है
1 बाई एन, 1 बाई एन, 1 बाई एन, डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा 1 बाई एन। नाउ सिंस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन रीड किया तो दिख रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है, इसका मीनिंग है मुझे ई ऑफ एक्स चाहिए, एंड मुझे वेरिएंस पूछा है, इसका मतलब मुझे वी ऑफ एक्स चाहिए। एंड इन ऑर्डर टू फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस फॉर अ रैंडम वेरिएबल एंड दैट टू फॉर अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये इसलिए मेरे टाइप नंबर 3 कैटेगरी में आ रहा है, एंड दैट इज द रीजन हम यहाँ पे xi इंटू पी का एक कॉलम बना रहे हैं, एंड फिर ये xi pi इंटू xi विल गिव मी xi स्क्वायर पी। हाँ, ये तब ढूंढना है जब वेरिएंस पूछा रहता है तब। अगर खाली एक्सपेक्टेड वैल्यू या खाली मीन पूछा तो ये कॉलम का जरूरत नहीं है, बट सिंस इन दिस क्वेश्चन हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस दोनों भी ढूंढना है, इसलिए ये दो एडिशनल कॉलम्स हैं। सो नाउ 1 इंटू 1 बाई एन, तो ये हो जाएगा 1 बाई एन। 2 इंटू 1 बाई एन, ये हो जाएगा 2 बाई एन। 3 इंटू 1 बाई एन, ये हो जाएगा 3 बाई एन। डॉट 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 n इंटू 1 बाई एन, ये हो जाएगा n अपॉन n। अभी ये जो वैल्यू है इंटू xi होगा, सो दिस बिकम्स 1 इंटू 1 बाई एन, ये हो जाएगा 1 बाई एन। 2 इंटू 2 बाई एन, मतलब ये एक्चुअल में हो जाएगा 4 बाई एन, बट मैं इसको लिखूंगा एज 2 स्क्वायर अपॉन एन। 3 इंटू 3 मतलब 9 हो जाएगा, बट आई विल राइट इट एज 3 स्क्वायर अपॉन एन। अच्छा, तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो ये भी 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिखूंगा। भले 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो मैंने सिर्फ 1 लिखा तो भी चलेगा, बट आई विल प्रेफर टू राइट इट एज 1 स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। डॉट 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 डॉट, ये भी हो जाएगा n इंटू n, तो ये हो गया n स्क्वायर अपॉन में n आ जाएगा, सो ये आ गया n स्क्वायर अपॉन n। नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू नीड टू मेक अ नोट ऑफ, दैट इज हमने ऑलरेडी ये नोट करके रखेंगे, ऑलरेडी ये पहले भी पता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अगर n होता है, this is called as sum of first n natural number। अगर ऐसा बोला 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n, मतलब ये हो गया मेरा प्लस साइन है, इसलिए सम ऑफ 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एज n इंटू n प्लस 1 बाई 2। फिर आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर। यस, इसको बोला जाता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम, इसलिए यहां पे प्लस साइन है, स्क्वायर्स एंड नेचुरल नंबर क्यों, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक है, सो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। सो यहां पे नाउ वंस वी नो दिस टू थिंग्स, यस, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहां पे ये नोट डाउन किया है, एंड यू ऑल शुड ऑल्सो नोट डाउन दिस। यस, टॉप ऑफ द पेज पे लिख देना है इसको, ये दो चीज को। एंड नाउ विल सी कि यहाँ पे जब e ऑफ x आता है, p से इट इज समेशन xi into pi, सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा ये सबका टोटल, सो ये हो जाएगा 1 बाई n प्लस 2 बाई n प्लस 3 बाई n प्लस डॉट 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 n अपॉन n। सो यहां पे जब हम ऑब्जर्व करते हैं ध्यान से, तो अपॉन में n जो है वो कॉमन है, सो आई टेक माई 1 बाई n टर्म एज कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n। सो इंस्टेड ऑफ दिस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, द वैल्यू ऑफ दैट इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। सो अब हम यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 बाई 2 ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विथ n प्लस 1 अपॉन 2,
as the value of E of x. अभी after that we have the next value, that is V of x लिखा जाएगा, which is same as E of x square minus E of x the whole square. So according to this, ये value के लिए हमें this is same as summation xi square pi minus summation xi pi the whole square. सो यहाँ पे जब समेशन एक्साई स्क्वायर पी आई मतलब मुझे इसका टोटल चाहिए, एंड जब मैं इसका टोटल लिखूंगा तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 स्क्वायर बाई एन प्लस 2 स्क्वायर बाई एन प्लस 3 स्क्वायर बाई एन प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर अपॉन एन आ जाएगा इन वन ब्रैकेट माइनस ये वाला जो वैल्यू है वो तो मुझे यहाँ पे मिल चुका है, इसका खाली स्क्वायर्स में वैल्यू लिख दूंगा, दैट इज n प्लस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर. अब ये वाले पार्ट को सॉल्व करने से पहले आई विल टेक द डिनोमिनेटर टर्म जो अपॉन में n है उसको मैं कॉमन लिख दूंगा फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट. तो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे आएगा n प्लस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर. इसको फिलहाल ऐसे ही रखेंगे. एंड जैसे मैंने ये टर्म नोट किया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर. तो ये वैल्यू अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस इज 1 बाई n इनटू ये हो जाएगा n इनटू n प्लस 1 इनटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस n प्लस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर. सो यहां से ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा. सो नाउ वी आर लेफ्ट विद n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर. इधर भी n प्लस 1 दिख रहा है, यहाँ पे भी n प्लस 1 दिख रहा है, तो वो कॉमन आ जाएगा. यहाँ पे ये 6 दिख रहा है और यहाँ पे ये 2 का मल्टीपल दिख रहा है, तो 2 और 6, तो आई कैन से 2 कॉमन आ जाएगा. सो अब यहां से n प्लस 1 बाहर आ गया, ये 6 में से 2 बाहर आ गया, तो इधर 2n प्लस 1 आएगा अपॉन, अच्छा 2 आया, 2 into what will give me 6, तो इधर आ जाएगा 3. अच्छा यहाँ पे n प्लस 1 द होल स्क्वायर है, उसमें से एक n प्लस 1 चला गया, तो इधर एक n प्लस 1 बाकी है. 2 का स्क्वायर, तो एक 2 चला गया, तो एक 2 अभी भी बचा है, तो वो यहाँ पे आ गया. सो नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2. Now in this bracket 3 and 2 का LCM होता है as 6, तो इसको 6 बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई दिस बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 into 2n plus 1, एंड इसको 6 बनाने के लिए भी मल्टीप्लाई दिस बाय 3, तो यहाँ पे माइनस है और ये 3 into ये हो जाएगा n plus 1, एंड आगे ये सिंप्लीफाई होगा तो n plus 1 upon 2 ब्रैकेट, ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं तो 4n plus 2 हो जाएगा इन वन ब्रैकेट, माइनस दूसरे ब्रैकेट में 3n plus 3 हो जाएगा अपॉन 6, एंड अब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बन जाएगा 4n plus 2 minus 3n minus 3 divided by 6. So after this मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरा v of x जो है this is equal to n plus 1 एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट के लिए ये जो है 4n minus 3n, तो ये हो जाएगा n, 2 minus 3 ये हो जाएगा -1, एंड जो यहाँ पे अपॉन में 6 है वो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में as 6. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा n plus 1 upon 2 into n minus 1 upon 6, मतलब यहाँ पे 2 6 ये 12 हो जाएगा, और ऊपर जो है वो a plus b a minus b जैसा है which gives me the value as a square minus b square, एंड जिसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा n square minus 1 upon 12. यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे since a plus b into a minus b this is equal to ये हो जाएगा a square minus b square,
ये वाला कंडीशन हमने यूज किया। सो ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ v ऑफ x। सो लास्ट में आई विल से देयरफॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू जो था वो e ऑफ x है, दैट इज n+1/2 एंड v ऑफ x वाला जो वैल्यू है ये हो जाएगा n² -1/12। So with this question is done. We'll make a note of this, and with this the session is also done. We'll end the session over here. See you in the next session. Thank you.